میں نے دیکھا کہ میں ایک سڑک پر جا رہا ہوں۔ اس سڑک پر پانی بہہ رہا ہے اور سڑک گیلی ہے، مگر بڑا اچھا موسم ہے کہ سڑک کے کنارے بلڈنگ کی بالکونی سے خوبصورت عورتیں مجھے اشارے کنایوں سے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی میرے دل میں مبہم سا خیال آیا، موت بلا رہی ہے۔ مگر فوراً ہی میں نے اسے جھٹک دیا اور مسکرا کر بھائی سے بولی، آپ خواہ مخواہ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں، خواب تو بہت اچھا ہے۔ میں تعبیر نامے میں اس کی تعبیر دیکھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے چپکے سے تعبیر نامے میں تعبیر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا، خوبصورت عورت دیکھنے کا مطلب ہے دولت ملے گی۔ میں نے بھائی کو بتایا، مگر وہ میری بات سننے کے بعد بھی اسی طرح فکر مند رہے۔ ان کی حالت ذرا بھی نہ بدلی، جیسے انہیں اس پر قطعی یقین نہیں آیا ہو۔ بس آہستہ سے کہنے لگے، تو کسی سے کہنا مت، امی کو بالکل نہ بتانا۔ میں نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ بھائی جان کی بیماری سے سارا گھر پریشان تھا۔ ابھی تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ایک 2.5-3 سال کا، ایک 1.25 سال کا۔ کچھ ہی دنوں میں بائی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ 2-3 ہفتوں میں ان کی حالت بدل گئی۔ صحن میں کیلوں کا درخت تھا جس میں کیلے لگے تھے، مگر بالکل کچے تھے۔ یہ گھر کا پہلا پھل تھا۔ ایک دن امی نے تسلے میں بھائی کے پاؤں دھلا کر انہیں کرسی پر صحن میں اسی درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ بھائی جان نے حسرت سے کیلوں کی طرف دیکھا، کہنے لگے، اماں یہ پہلا پھل میں کھاؤں گا۔ اماں پیار سے بولی، پک جائے تو میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دوں گی یہ پھل۔ وہ چپ چاپ بیٹھے، کرسی کی پشت پر سر ٹکائے کیلے کے درخت کو گھورتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ حسرت تھی۔ ممتا کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی کیلے پک جائیں تو توڑ کر اپنے بچے کو کھلا دے۔ دوسرے ہی دن بھائی کوما میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے برین ہیمریج بتایا اور تیسرے دن وہ چل بسے۔ جس وقت ان کا جنازہ لے جا رہے تھے، میں بالکل صاف کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ 4 فرشتے ہیں۔ یہ کافی لمبے قد کے آدمی نما ہیں۔ ان چاروں نے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے اور لے جا رہے ہیں۔ یہ منظر اس قدر واضح تھا کہ بھائی کا اصل میں جنازہ کون لے جا رہا ہے، سب کچھ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بس صرف فرشتے ہی انہیں لے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ بھائی کسی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں چیخ چیخ کر انہیں کہنے لگی، خدا کے لیے میرے بھائی کو مت لے جاؤ۔ پوری قوت سے میں سب سے التجا کرتی رہی کہ میرے بھائی کو روکو، وہ اسے لے جا رہے ہیں، پکڑو انہیں، مت لے جانے دو۔ میں چلا رہی تھی اور فرشتوں سے التجا کر رہی تھی، چھوڑ دو اسے، میرے بھائی کو مت لے جاؤ۔ پھر میں ان سے لڑنے لگی، میں تمہیں ہرگز بھی نہیں لے جانے دوں گی۔ میں ان کے بالکل قریب تھی، مگر وہ میری بات پر دھیان نہیں دے رہے تھے اور بس اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ابھی بچی ہوں اور یہ تمام فرشتے خوب جوان اور مضبوط آدمی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں چیخ چیخ کر ان سے اپنے بھائی کے لیے جھگڑ رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے میری پشت پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، شمامہ صبر کرو۔ میں چیخ پڑی، بھابھی وہ میرے بھائی کو لے جا رہے ہیں، انہیں روک لو، وہ میری نہیں سنتے۔ وہ سمجھی میں جلوس جنازے میں شامل لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان کے خیال سے واقف ہو گئی۔ میں پھر چیخ کر بولی، وہ لمبے قد والے میرے بھائی کو لے جا رہے ہیں۔ بھابھی پاس کھڑے کسی سے بولی، ہسٹیرک ہو گئی ہے، جلدی سے گولی دینا۔ ایک گولی مجھے کھلا دی گئی۔ نہ اس وقت میں ہسٹیرک تھی، نہ میرا دل کمزور تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ شعوری طور پر میں اس وقت اپنے آپ کو بے حد توانا محسوس کر رہی تھی۔ بس جو کچھ میں حقیقت میں دیکھ رہی تھی اسے روکنا چاہتی تھی، اور اس پر میرا کچھ بس نہیں چل رہا تھا۔ میرے مسلسل چلانے اور جھگڑنے کے باوجود بھی وہ فرشتے میری بات کو سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کے اندر تو جیسے بس اپنے کام کے سوا اور کوئی خیال ہی نہ تھا۔ اس لمحے مجھے وہ بالکل پتھر دل لگے۔ وہ میرے درد کو کیا سمجھ سکتے تھے؟ جب بھابھی نے مجھے اعصاب کو سکون دینے والی گولی کھلائی تو مجھ پر رنج کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے میرا دل، میرا ذہن اتنا کمزور ہے کہ اس کی کمزوری نے میرے اعصاب پر اثر ڈال دیا ہے۔ کاش یہ بھی دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ پھر ان سے صبر کی بات کرتی۔ میں رو کر پھر چیخ پڑی، تم لوگ دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ میرے بھائی کو لے جا رہے ہیں، انہیں روکتے کیوں نہیں؟ خدا کے لیے انہیں روکو۔ مجھے اس وقت گھر میں بھی تمام لوگ بیک وقت دکھائی دے رہے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ سب افسوس کر رہے تھے کہ بہن کو بھائی کی موت کا گہرا صدمہ ہو گیا ہے، دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ مجھے اس وقت یہ سب لوگ زہر لگ رہے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی صورتحال کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ انہیں دیکھنا چاہیے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سب مجھے اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ اگر یہ واقعی میرے غم سے رنجیدہ تھے تو ایک بار تو ان فرشتوں کو روکتے۔ یہ تو ان کے قریب جاتے ہی نہیں تھے۔
उन के लिए उन्होंने सारा रास्ता खाली कर दिया था। बस मैं एक नातवा उनके रास्ते में खड़ी थी। वो चार हट्टे कट्टे भला मेरी क्या सुनते। मेरे अंदर का दर्द एक तूफान था जो हर हंसो हाशाक को बहाने को तैयार था। चंद घंटों बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर सहन में कदम रखा तो एकदम केलों के दरख्त की जानिब नजर गई। दरख्त के ऊपर भाई का चेहरा दिखाई दिया। मैं ठुठक कर रह गई। ये उनकी हसरत है। वो घर का पहला फल खाना चाहते थे। मैंने किसी से जिक्र ना किया मगर दिल ही दिल में अहद कर लिया कि मैं ये नहीं खाऊंगी। खाने की हसरत लेकर मेरा भाई जिसके लिए दुनिया से चला गया, मैं सहन से लौट आई। उस दरख्त से जैसे खौफ सा आने लगा। मगर ये सिर्फ मैं ही घर में अकेली ऐसी नहीं थी। 3 दिन के अंदर सारे घर वालों की ये हालत हो गई कि सब ही ने केलों के दरख्त पर भाईजान की सूरत देखी। सब खुली आंखों से देखते थे। यहाँ तक कि अब्बा भी उस दरख्त से सख्त हाइफ हो गए। शाम को तो कोई भी सहन में ना जाता। दरख्त के पास जाना दुश्वार हो गया। हर एक की जुबान पर यही बात थी कि इस दरख्त को कटवा दो। छोटे भाईजान और अम्मी अब्बा सलाह करने लगे कि फलदार दरख्त काटना गुनाह है। अभी फल बिल्कुल ही कच्चा है। मगर सारा घर ऐसा खौफजदा हो रहा था कि जैसे दरख्त अब यहाँ नहीं होना चाहिए। इसको क्या करें? मेरे कानों में भाईजान की आवाज गूंजती, पहला फल मैं ही खाऊंगा अम्मा। उनकी गर्दन हर दम दरख्त पर दिखाई देती। ये बात सिर्फ मेरी होती तो कुछ ना था, मगर अब तो सारा घर देख रहा था और सब खौफजदा थे। भाईजान ने मौलवी साहिबान से और चंद लोगों से बात की, बाकायदा फतवा लिया। उन्होंने फतवा दिया कि अगर ऐसी बात है कि सारा घर इस दरख्त को कटवाने पर आमादा है तो कटवा दें। भाई की ख्वाहिश गालिब आ गई। तीसरे दिन दरख्त को पूरी तरह जड़ से कटवा दिया गया। किसी का जी तक न चाहा कि उस फल को हाथ भी लगाए। अजीब वहशत थी सबके दिलों पर। वो केले एक गरीब औरत ले गई। उस वक्त से घर की वहशत दूर हो गई। फिर किसी को नजर न आए। मैं रोजाना बाहर के बरामदे में जा खड़ी होती। जिस वक्त वो सुबह दफ्तर जाने के लिए आते थे, जल्दी जल्दी आते, अम्मा के पास जाते, सलाम करते और कहते, अच्छा अम्मा मैं आता हूँ। हर रोज मेरी आंखों के सामने यही मंजर दोहराया जाता। मैं खुली आंखों से उन्हें इस तरह आता देखती, उनकी आवाज़ सुनती। ये सब कुछ इतना वाज़ेह होता कि मैं बाकायदा उनसे आते जाते बातें करती, उनसे उनका हाल पूछती, घर की बातें बताती, अपना दुख बताती। मैं जानती थी कि उनकी रूह हर रोज़ इस तरह आती है। वो अम्मा को सलाम करने आते हैं। उन्हें अम्मा से बेहद मोहब्बत है और उनकी फ़िक्र भी है। अम्मा ममता के दुख में उन्हें बेवफा कहने लगती थीं। अब उन्हें कौन बताता, उनका बेटा तो अब भी अपनी वफाएं निभा रहा है। मेरी जुबान बंद थी। मैं जान गई थी कि लोग मेरी तरह सब कुछ नहीं देख सकते। वो मुझे पागल समझेंगे या फिर समझेंगे कि आसाबी कमज़ोरी की वजह से मैं सदमे का शिकार हूँ। ना मेरा दिल कमज़ोर है, ना मेरे आसाब कमज़ोर हैं। बस अल्लाह के सिवा मुझे और कोई नहीं जान सकता। पूरे 40 दिन तक भाईजान रोज़ाना आकर अम्मा को सलाम करते और मुझसे 1-2 बातें करके जल्दी जल्दी रुखसत हो जाते। मैं जब भी उनसे पूछती, आप ठीक हैं? कहते हाँ ठीक हूँ और कोई बात वहाँ की नहीं बताते। 40वें के बाद एक दिन उसी वक्त आए और कहने लगे, शमामा अब मैं रोज रोज नहीं आ सकूंगा, मगर कभी कभी तुम लोगों को देखने आ सकूंगा। उस दिन मुझे बड़ी ही तकलीफ हुई। उस दिन मुझे सचमुच भाईजान के मरने का एहसास हुआ कि वाकई अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है और मैं उसे नहीं देख सकती। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कुदरत का कानून है। जान से ज्यादा अजीज हस्तियां कैसे पल भर में आंखों से ओझल हो जाती हैं। उसके बाद फिर भाईजान नहीं आए। मैंने 2-3 दिन उनका इंतजार किया, फिर सब्र कर लिया कि ना जाने वहाँ उनकी क्या मजबूरियाँ होंगी। इस अरसे में एक बार मेरी हबीब से मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम मरने के बाद रूह के दुनिया में आने पर यकीन रखते हो? वो कहने लगा, नहीं। अगर रूहें दुनिया में आए भी तो उन्हें कौन देख सकता है? मैं ये सुनकर चुप हो गई। फिर मैंने भाईजान से मुतालिक कोई बात उसे नहीं बताई, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे पागल समझे और मुझसे मिलना बंद कर दे। उन चंद दिनों में मुझे यूं लगा जैसे मैं एकदम बड़ी हो गई हूँ। मेरे अंदर घर की जिम्मेदारियों का एहसास जाग उठा। बड़े भाई ज्यादातर घर को सपोर्ट करते थे। अब्बा रिटायर्ड थे। दोनों भाई मिलकर घर चलाते थे। हमें अम्मी ने यही तरबियत दी थी कि ज़रूरत पड़ने पर खुद कमाना खाना, किसी की मुहताजी अच्छी नहीं है। मैंने घर की तरफ देखा। हम 6 बहनें और माँ बाप घर में थे। बड़ी बहन नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। सकीना और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया था। सकीना फैशन एम्ब्रॉयडरी भी सीखती थी और साथ में चंद लड़कियों के घर जाकर सिखाती भी थी। उसे मशीनी एम्ब्रॉयडरी का बेहद शौक था। सिलाई भी वो बड़ी उम्दा करती थी। मुझसे छोटी तीनों बहनें स्कूल में पढ़ती थीं। सबसे छोटी 8-9 साल की थी, उससे बड़ी 10 साल की थी।
اس سے بڑی تقریباً 14 سال کی تھی۔ میں نے گھر کا جائزہ لیا۔ ابھی ان چھوٹی بہنوں کی تعلیم باقی ہے، ساری بہنوں کی شادی کرنی ہے، ایک بھائی ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا کہ ہمیں کرے گا۔ ذمہ داری کا یہی احساس ہم تینوں بڑی بہنوں کے اندر جاگ اٹھا۔ کوئی بھی ایک بھائی کے اوپر بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سکینہ نے مشین ایمبرائڈری سکھانے کے لیے کئی لڑکیوں کے ٹیوشن اور لے لیے۔ بڑی بہن نرس بن چکی تھی اور ہسپتال میں کام کرنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ابھی تو میرا میٹرک کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا۔ کسی سے ٹیلی فون آپریٹر کا پتہ لگا کہ وہ میٹرک پاس کو لیتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہی کام کرنا ہے۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گی۔ امی نے تو اجازت دے دی تھی، اب مسئلہ بھائی کا تھا۔ بڑی ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا اور کہا کہ میں گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ پر اس قدر بوجھ پڑے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا، نہایت محبت کے ساتھ کہنے لگے، شمامہ تمہاری عمر ابھی مشکل سے 16 سال ہے۔ تم نے ابھی دنیا میں باہر نکل کر دیکھا ہی کیا ہے؟ دنیا اچھی نہیں ہے۔ جوان لڑکیوں کو آفس میں کام کرنے پر دنیا اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کالج میں داخلہ لے لو، تم پڑھائی میں اچھی ہو، کم از کم BA کر لو، پھر شادی کر دیں گے۔ مگر میرے اندر یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ میرا ضمیر کسی قیمت پر یہ گوارا نہ کر سکا کہ ایک بھائی پر گھر کا سارا بوجھ پڑ جائے۔ مجھے اندر سے یہ حوصلہ بھی تھا کہ میں آرام سے یہ جاب کر لوں گی۔ ادھر ادھر میرے خراب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حبیب میرے لیے مجازی خدا کا درجہ رکھتا تھا۔ میں اس سے پرستش کی حد تک عشق کرتی تھی۔ بھائی نصیحت کر رہے تھے اور میرا دل انہیں جواب دے رہا تھا۔ جب میں کسی طرح نہ مانی تو بھائی نے کہا، اچھا میری ایک نصیحت پلے سے باندھ لو، وہ یہ ہے کہ سننا سب کی، کرنا اپنی۔ تم جب باہر نکلو گی تو تمہیں بے شمار لوگ ملیں گے جو تمہارے برے وقت پر دلجوئی بھی کریں گے، اور تمہیں طرح طرح کے مشورے بھی دیں گے۔ ایک آدمی اتنی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت تم سب کی باتیں، سب کے مشورے غور سے سننا اور پھر ان میں سے جو بھی تم کو پسند آئے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے کے ساتھ اس پر عمل کرنا، کسی کی ناراضگی کی فکر نہ کرنا۔ کوئی شخص بھی دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، سننا سب کی، کرنا اپنی۔ میرے لیے بھائی کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت سے کم نہ تھی، جو زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے مشعل راہ بنی رہی۔ میں ٹیلی فون ایکسچینج گئی۔ وہاں انٹرویو میں جب میں نے بتایا کہ ابھی میرا رزلٹ آنے والا ہے تو پہلے تو انہوں نے کہا بعد میں آنا۔ میں نے کہا آپ مجھے رکھ لیں، 1-2 ہفتے میں میرا رزلٹ آ ہی جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ کہنے لگے ہم میٹرک پاس سے نیچے لیتے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور پاس ہو جاؤں گی۔ وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگا آپ کو یقین ہے؟ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں 2nd ڈویژن میں پاس ہو جاؤں گی۔ وہ افسر کہنے لگا چلیے رکھ لیتے ہیں، مگر اس شرط پر کہ اگر فیل ہو گئی تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور دوسرے دن کام سے لگ گئی۔ 15 دن بعد میرا رزلٹ آ گیا۔ میں 2nd ڈویژن سے میٹرک میں کامیاب ہو گئی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس افسر نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا اور حبیب تو اس قدر خوش ہوا کہ جیسے میں نے PhD کر لی ہے۔ ایکسچینج میں لڑکے لڑکیاں سب اکٹھے کام کرتے تھے، خصوصاً جہاں میں کام کر رہی تھی وہاں سب لوگ بہت اچھے تھے۔ اصل میں شروع میں تو میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی، کم ہی کسی سے بولتی تھی۔ ویسے بھی مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہ تھی۔ ان دنوں میرے سر پر اس قدر گھر کی ذمہ داری کا بوجھ تھا، حالانکہ گھر کی مالی حالت اتنی بری نہیں تھی، اللہ کا فضل تھا، مگر بس ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا کہ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے۔ بڑے بھائی کے جانے سے مالی وسائل میں جو کمی ہو گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے گھر والوں کی مدد کرنی ہے۔ مجھے 3 چھوٹی بہنوں کا اس قدر خیال آتا جیسے وہ میری بہنیں نہیں میرے بچے ہیں اور ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ مجھے اس میں بڑی ہی خوشی ملتی کہ میں کسی کے کام آ رہی ہوں۔ 7.5 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی اور 1 گھنٹہ جانے اور 1 گھنٹہ بس میں آنے میں خرچ ہوتا تھا۔ اس دوران میں 1 آنے کے پکوڑے اور 1 آنے کا بند لیتی اور پانی پی کر اپنا پیٹ بھرتی، باقی سارے پیسے امی کو دیتی تھی۔ پہلی کو جب تنہا ملتی تو خوشی خوشی پاس مارکیٹ سے 1-1.5 روپے کے پھل خریدتی، سستا زمانہ تھا، تھیلا بھر جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹی بہنوں کو خوشی سے پکارتی کہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں، پھر اسی وقت تینوں کو 1-1 روپیہ جیب خرچ دیتی، باقی پیسے امی کو دیتی، سارا گھر خوش ہو جاتا، ہم ہنستی گاتی۔
बड़ा ही खुशगवार माहौल होता। सारी बहनें सहेलियों की तरह थीं। सकीना से बड़ी बहन जो नर्सिंग की जॉब कर रही थी, वो अस्पताल के स्टाफ हाउस में ही रहती थी। मुझे याद है उनकी ड्यूटी अक्सर टीबी वार्ड में लगाया करते थे, क्योंकि वहाँ और नर्सें जाना पसंद नहीं करती थीं और आमतौर से नाइट ड्यूटी होती थी। सुबह नाश्ते में उन्हें 2 अंडे मिलते थे। ये कच्चे होते थे कि जैसा मर्जी अपनी पसंद से पकवा लें। उनके अंदर मोहब्बत और इसार इस कदर था कि पूरे 15 दिन अंडे जमा करती, फ्रिज में रखवा देती और 15 दिन बाद जब घर लौटती तो सबके साथ ही पका कर खाती। अम्मी का दिल बहुत दुखता। वो बार बार कहती कि नाइट ड्यूटी के बाद तुझे एनर्जी की ज़रूरत है, वहीं खा लिया करो। मगर वो हमेशा यही कहती, अम्मी सबके साथ मिलकर खाने में मज़ा आता है, सब बहनें खुश हो जाती हैं। दरअसल हमें शुरू ही से एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत सी पड़ गई थी। हम कभी अपनी ज़ात के लिए कुछ भी ना सोचते थे। हमेशा यही जहन में रहता कि हमारी ज़ात से किस तरह दूसरों को फ़ायदा और खुशी पहुँचे। सकीना तो हर वक्त दूसरों की मदद में सरगर्दा रहती। मोहल्ले पड़ोस की लड़कियों को जिसको भी ज़रूरत पड़ती, सिलाई एम्ब्रॉयडरी में उसकी मदद करती। गर्ज ये कि पूरे घर में हिदमत हल्क में सकीना सबसे आगे थी। इस वजह से उसके बहुत से मिलने जुलने वाले थे। वो घर जाके जो भी काम कर देती थी, लोग उससे बेहद खुश थे, बड़ी तारीफ करते थे। मैं बहुत ही कम किसी के घर जाती थी। ऑफिस में ही दिन भर लग जाता। घर आके कुछ घर के काम करती, खाना वगैरह भी अपनी भारी पर पकाती। बाकी काम करते करते गाना गाना मेरी आदत थी। असल में गाना मेरे मूड की तर्जुमानी करता। जब दिल अफसुर्दा होता किसी वजह से तो गमगीन गाने लब पर आते, और जब खुशी होती तो खुशी के गाने। गाना मेरी फितरत थी और है। हबीब के और मेरे दरमियान हुतूत का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ था। तकरीबन हर 15-20 दिन में एक खत हबीब को ज़रूर लिख देती। जब मिलते तो ये खत दे देती। उन खतों में कोई दुनियावी बात ना होती, बस बंदगी के उस इश्क का इजहार था जो बचपन से मेरे दिल में पल रहा था। इश्क की उस शिद्दत का बयान होता जिसकी तस्वीर हर लम्हे मेरे तस्वुर के पर्दे पर रहती थी। हबीब को लिखा हुआ हर खत मेरे उस तकाजे की तस्कीन था। मैं शुरू ही से अपने अंदर उठने वाले तकाज़ों का रुख जानती थी। मैं जानती थी कि मेरे अंदर अल्लाह के इश्क का एक दरिया बह रहा है। उस दरिया का बहाव कभी माँ की जानिब होता, कभी सहेली की जानिब, कभी बहन भाइयों की जानिब, और अब इश्क के तकाजे का बहाव हबीब की जानिब था। मैं अक्सर तन्हाइयों में अपने अंदर उठने वाले उन तकाज़ों पर संजीदगी से गौर करती तो मुझे यही पता चलता कि हर तकाजा अल्लाह ही की जानिब से मेरे अंदर आ रहा है। वो मेरे अंदर लोगों की मोहब्बत डालता है। जैसे जैसे मेरे अंदर उन तकाज़ों का रुख बदलता जाता है, मेरा अल्लाह उनकी तकमील के लिए वसाइल भी पैदा करता जाता है। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इबादत गुजार तो नहीं रही। मेरा इश्क ही मेरी इबादत है, जो अल्लाह के तसव्वुर को ज़ाहिर और बातिन दोनों में जानता है। मगर नमाज में मुझे लुत्फ़ व सुरूर बहुत आता। कुरान से तो मुझे इंतहाई लगाव था। मैं हमेशा कुरान व तर्जुमा पढ़ती। मैं सोचती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा महबूब बंदे हैं। वो अल्लाह मियाँ से कैसे मिलते होंगे, कैसे बातें करते होंगे। काश मुझे भी वो रास्ता मिल जाए तो मैं उस रास्ते पर चलूं। मैं अक्सर अल्लाह मियाँ से तकरार करती कि ये क्या राज है कि आपने मखलूक को पैदा कर दिया और खुद पर्दे में छुप कर बैठ गए। मैं तो आपको जिस तरह बगैर देखे प्यार करती हूँ, इस तरह आपको देखकर भी प्यार करना चाहती हूँ। मेरे दिल ने कभी अल्लाह को खुद से दूर नहीं जाना। वो हमेशा मुझे अपने अंदर ही नजर आया। मैं उससे अपने दिल की हर बात कर लेती। अपने मसाइल में कभी किसी से ना कहती। अल्लाह पाक खुद इसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह कर देते थे। मैं जानती थी अल्लाह इतने करीब से मुझे देख रहा है, फिर हाँ किसी से कहने सुनने की मुझे क्या ज़रूरत है। सर्दियों की रात में जब रात 8 बजे काम से छूटती तो घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज जाते। उन दिनों हमारे घर का इलाका बड़ा सुनसान था। बहुत से लोग चाय के खुले होटल की तरफ बैठे रहते जो बस अड्डों पर होते थे। बस अड्डे से हमारे घर तक भी जरा चलना पड़ता था। सर्दी में रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता था। मैं इतनी डरपोक ना थी, मगर अम्मी को बहुत फिक्र रहती। 1-2 दफा बस स्टॉप पर भी आए। एक दफा जब मैं बस से उतरी तो अम्मी स्टॉप पर खड़ी हुई थी। मुझे बहुत तकलीफ और शर्मिंदगी हुई। मैंने अम्मी से कहा, आप आइंदा मुझे लेने ना आए, मैं खुद आ जाऊंगी। कहने लगी, रोज रोज तुम्हारे अब्बा नहीं आते, कहते हैं कि समझदार है, खुद आ जाएगी। मैंने कहा, अम्मी बस आप नहीं आएंगी, मैं वाकई बच्ची नहीं हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। अम्मी ने दुआ दी और कहा कि बेटी अल्लाह ही सबका मुहाफिज है। मैंने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, मैं अपने माँ बाप खुसूसन माँ को अपनी ज़ात के लिए तकलीफ़ नहीं देना चाहती।
तो ही मेरी हिफाजत रखना। दूसरे दिन दफ्तर से निकली तो हबीब खड़े थे। मेरे जहन में उन्हें देखते ही ख्याल आया, उन्हें अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। खुशी के मारे दिल खुल गया। हबीब ने छूटते ही पूछा, इतनी रात को तुम अकेली जाती हो? मैंने कहा, यहाँ तो ऑफिस वाले भी स्टॉप पर होते हैं, वहाँ अब्बा या अम्मी लेने आ जाती हैं, मगर मैं ये नहीं चाहती कि सर्दी में उन्हें इंतजार की तकलीफ दूं। हबीब फौरन बोला, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आया करूँगा। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी। कहने लगा, बल्कि कुछ देर तुम्हारा साथ हो जाएगा। हमने फौरन ही बस पकड़ ली। स्टॉप पर उतरकर उसने मुझे घर छोड़ा और खुद रुखसत हो गया। वो रोजाना इसी तरह करता। हम कभी भी ज्यादा बातें नहीं करते थे। बस स्टॉप से घर के रास्ते तक थोड़ी सी बात हो जाती और बस। मैं अल्लाह की मेहरबानियों पर हर वक्त उसका शुक्र अदा करती। उन दिनों मुझे इस बात का कभी एहसास ना हुआ, मगर अब सोचती हूँ कि कैसी अजीब बात थी। हम सालों इस तरह रास्ते में मिलते रहे, तकरीबन 4 साल सड़क पर इकट्ठे चलते रहे, जैसे किसी ने हमें देखा ही नहीं। ना किसी ने हमारे वालिदैन से जिक्र किया, ना किसी ने हमें राह में टोका। हमें मिलते हुए 3 साल हो चुके थे। हबीब के वालिदैन अपनी बरादरी में हबीब का रिश्ता तय करना चाहते थे। उन्होंने मुझे देखा भी ना था। हबीब ने इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। इस पर वो किसी तरह ना माने और मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। हबीब अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। अजीब सिचुएशन थी। हबीब ने मुझे सारी बात बताई। मैंने बड़े ठंडे दिल से ये सारी बात सुनी और हबीब से बोली कि माँ बाप का हक अपनी औलाद पर ज्यादा होता है। उन्होंने ना जाने तुमसे क्या क्या उम्मीदें लगा रखी होंगी। तुम अपने माँ बाप का दिल मेरी वजह से ना तोड़ो। माँ बाप को नाराज करके ना तुम खुश रह सकोगे ना मैं खुश रह सकूंगी। खून के रिश्ते कभी छूटते नहीं हैं। मेरी वजह से अगर इनमें दरार पड़ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। अब तुम मुझसे मिलना छोड़ दो और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। हबीब ये बात सुनकर बहुत नाराज हुआ। उसने मुझसे साफ साफ कहा, मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अभी तो मैंने तालीम खत्म करके काम शुरू किया है और वो मेरी शादी का सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन तो मैं किसी तरह टाल सकता हूँ। मैंने कहा, देखो, जब किसी तरह तुम्हारे माँ बाप आमादा नहीं हैं तो अब क्या और जब क्या। रहा सवाल मोहब्बत का, तो मोहब्बत तो दिलों में बसती है। मोहब्बत को दिल से कोई नहीं निकाल सकता। हबीब ने कहा, तुम पागल हो गई हो। हबीब ने कहा, तुम तो पागल हो गई हो। मैंने ख्वामखा तुम्हें बता दिया, कल मैं फिर आऊँगा। मैंने कहा, कल भी मेरा यही फैसला होगा कि तुम मुझसे मिलना छोड़ दो और अपने माँ बाप की बात मान लो। दूसरे दिन वो फिर आया। मैंने सख्ती के साथ उसे मिलने से मना कर दिया। वो चला गया ये कहते हुए कि मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। जिंदगी अपनी राह चलती रही, मगर इस तरह जैसे अपाहिज हो। 2 महीने मुश्किल से हुए थे। मुझे हल्की हल्की खांसी रहने लगी। मेरे होंठ मुस्कुराना भूल गए, मेरे लब गाना भूल गए। मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। हजार अपने आप को समझाती, मगर सब बेसूद था। 3 माह में काफी कमजोर हो गई और हल्की हल्की खांसी में ही काम पर जाती रही। मैं अल्लाह पाक से कहती कि मुझे इस कठिन दौर से गुजार दे। अम्मी मेरी गिरती हुई सेहत से परेशान हुई। अब मुझे पहनने ओढ़ने में दिलचस्पी थी ना किसी काम में। अम्मी डॉक्टर के पास ले गईं। उसने कहा टीबी का असर है, अभी बिल्कुल शुरू है, ये शुरू ही की अलामतें हैं। इंजेक्शन के कोर्स लगेंगे, ठीक हो जाएगी। मुझे सुबह शाम इंजेक्शन लगते। हर वक्त अम्मी मेरी सेहत के पीछे पड़ी रहती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी खांसी खत्म हो गई, मगर दिल का हाल वही था। मेरे अंदर जिंदा रहने की हर उमंग खत्म हो गई थी। मैंने हबीब को देखा था, न उसके मुतालिक खबर सुनी थी। सुनती भी किससे? कोई हमारे दरमियान रिश्ते को जानता भी तो ना था। उस दिन दफ्तर में बैठी बैठी सोचने लगी कि अल्लाह मियाँ ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है। इन 6 महीनों में मैंने भी देख लिया है कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ना ही किसी और का ख्याल कर सकती हूँ। अपना हाल तो मैं खुद जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। हबीब के माँ बाप को हमारे हाल का क्या पता है। मैंने अल्लाह पाक से बड़ी आजिज़ी के साथ इल्तिजा की कि या अल्लाह, मैं अभी बिल्कुल नौजवान हूँ, आगे चलकर मेरी भी शादी का मसला खड़ा होगा और मैं किसी और का ख्याल भी अब नहीं कर सकती। कोई ऐसी तदबीर हो कि एक बार फिर हबीब और मैं मिल जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम मैं एक नज़र देख ही लूं। मेरे जहन में ख्याल आया, जब मैं खुद उससे मिलने को मना कर चुकी हूँ तो अब वो क्यों मुझे मिलने आएगा। मैंने सोचा एक ही तरकीब है, दफ्तर के किसी लड़के के साथ उसके घर के करीब वाले स्टॉप पर उतर जाऊं। वहां से गुजरेगा, मुझे अजनबी लड़के के साथ देखकर जरूर मेरी तरफ आएगा। मैंने एक लड़के से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं फलां स्टॉप पर उतरूंगी।
तुम भी मेरे साथ उतर जाना, फिर वहाँ से मुझे जहाँ जाना है वहाँ की बस ले लूंगी। तुम मुझे बस में बिठाकर वापस चले आना। वो कहने लगा कि यहाँ से तो हर तरफ की बसें मिलती हैं, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा, बस मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो। अगर तुम मेरे साथ जा सकते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और को साथ ले लूंगी। वो जल्दी से बोला, अरे नहीं मिस शमामा, मैं आपके साथ चलता हूँ। रात 8 बजे काम खत्म करके मैं उस लड़के के साथ हबीब के घर के पास वाले स्टॉप पर उतर गई। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर यहाँ कहीं होगा और मुझे देख लेगा। मैं उस लड़के के साथ स्टॉप पर खड़ी रही। हर बस आने पर वो कहता, मिस शमामा आपकी बस आ गई। मैं कहती, अभी नहीं। 15-20 मिनट बाद मुझे हबीब नजर आ गया। अब मैंने उस लड़के से कहा, अब तुम जा सकते हो, मेरी बस भी आ गई है। मैं अपने घर की बस में सवार हो गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हबीब ज़रूर इसी बस में मेरे पीछे आएगा। जब मैं अपने घर के स्टॉप पर उतरी तो वो भी बस से उतर गया। सलाम के बाद कहने लगा, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने कहा, ठीक हूँ। कहने लगा, वो लड़का कौन था? मैंने कहा, वो मेरे साथ काम करता है। मैंने सादगी से कहा, आपको देखने आई थी, फिर हमारी फौरन सुलह हो गई। लड़ाई थी ही कब? हबीब ने बताया कि उसके बाद वो माँ बाप से नाराज होकर दूसरे शहर अपने रिश्तेदारों के पास चला गया था। 1 माह बाद माँ बाप ने बुलवा लिया, इस शर्त पर कि अब शादी की बात नहीं करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि अब उम्र भर शादी नहीं करूंगा। मैंने भी बताया, मैं बहुत बीमार रही। मेरा तो पहले ही ये फैसला था कि किसी और का ख्याल भी नहीं करूंगी। उसने मुझे समझाया। कहने लगा, जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे माँ बाप के बगैर शादी कर लूँगा। जब हम दोनों जानते हैं कि हम कहीं और शादी का ख्याल भी नहीं कर सकते तो फिर हमें किसी की नाराज़गी और रजामंदी का सोचना फजूल है। हम फिर पहले की तरह मिलने लगे। मुझे सर्विस करने को 3 साल होने को आए थे। हमने सोचा अब हमें शादी करना चाहिए। मुझे अपने घर वालों की तरफ से कोई डर ना था। मैं जानती थी वो ऐसे तंग नज़र नहीं हैं। मैं कहूँगी तो मान जाएंगे। हबीब ने फिर अपने वालिदैन से कहा। उसकी माँ और बहन मुझे देखने आईं। दोनों ने मुझे नापसंद कर दिया। मैंने उस वक्त तक अपने घर में नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि अगर पसंद आ गई तो फिर ही बात करूँगी। हबीब को पता चला तो फिर उन्हें जिद आ गई। घर में माँ बाप के साथ फिर तलख कलामी हुई। मुझे उसने कहा, मेरे माँ बाप तो मानेंगे नहीं, बेहतर है कि हम शादी कर लें, बाद में वो खुद ही राजी हो जाएंगे। हम दोनों बालिग हैं, शरीयत हमें अपनी मर्जी की शादी करने का पूरा हक देती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी अम्मी से बात करूँगी। चंद दिन बाद मैंने हौसला करके अम्मी से कहा कि अम्मी, एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मी कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे भाई को बुलाऊंगी, उसके सामने उसे बुलवा लेना। भाईजान का मुझ पर बहुत रौब था। वैसे वो बेहद नेक और रहम दिल थे। मेरे भाई और एक कज़न के साथ हबीब का इंटरव्यू हुआ। अभी वो ड्राइंग रूम में थे। मैं दूसरे कमरे में थी कि मेरी बहन, जिसे सूरत हाल का पता लग गया था, मेरे पास आई। कहने लगी, भाईजान की सूरत बड़ी संजीदा लग रही है। सभी बहुत चुपचाप बैठे हैं। लगता है भाईजान ने इनकार कर दिया। इतना सुनते ही मेरी नाक से एकदम नक्सीर फूट गई। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टा नाक पर रखा। सारा दुपट्टा खून से तर हो गया। बहन घबरा कर भाई को अंदर बुला लाई। भाई ने मुझे तसल्ली दी, फौरन लटा दिया। कहने लगा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा हबीब के पास वापस चले गए। हबीब चला गया तो भाईजान अम्मी से कह रहे थे, लड़का निहायत ही शरीफ है, हमें पसंद आया। दूसरे दिन रात के 11 बजे मेरे बड़े बहनोई ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, एक राज की बात करनी है। मैं हंस दी कि राज की बात, और वो भी मुझसे। मैं समझी यूं ही मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो बोले, अपना कान करीब ला। फिर आहिस्ता से मेरे कान में बोले, कल तेरी शादी हो रही है, मेहंदी लगा ले। मैं एकदम उछल पड़ी। कल मेरी शादी हो रही है? कहने लगे, अरे हाँ, कल तेरा दुल्हा सेहरा बांधे आएगा तुझे लेने। अब मेरी समझ में आया कि मेरी नक्सीर का खून देखकर भाई बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लिया और फौरन ही शादी तय कर दी। दूसरे दिन मेरे तो तमाम घर वाले और रिश्तेदार थे, मगर हबीब सिर्फ अपने एक दोस्त के साथ आया था। हमारी शादी हो गई। हबीब को सभी ने पसंद किया। रुखसत होकर हम भाईजान के साथ रहे। वो जिस बिल्डिंग में रहते थे वहीं एक फ्लैट खाली था, उसमें मुझे ले गए। हबीब ने पहली रात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहा, अब मैं तेरे उन हथों से महरूम हो जाऊंगा। मैं सोचने लगी, जिंदगी कितने खुशगवार मोड़ पर आ गई है। तीसरे दिन भाईजान ने हमें घर सेट करने में पूरी मदद की। किचन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। हमें अपने घर की इंतहाई खुशी थी। तीसरे दिन बड़ा मज़ा आया। हबीब काम पर से वापस आए तो उन्हें भूख लगी हुई थी।
میں نے کہا چلو اب اپنے کچن میں پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھائی جان کے ہاں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ یہ تیسرا دن ہی تھا، میں نے جلدی جلدی آٹا گوندھا۔ بھائی جان بھابھی کہیں گئے ہوئے تھے، آٹا ذرا پتلا ہو گیا۔ میں ویسے ہی حبیب کے سامنے روٹی ڈالتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ ادھر آٹا پتلا ہو گیا تو ادھر توا بھی بالکل اوندھا تھا۔ مجھے امی کے گھر کی عادت تھی سیدھے توے پر روٹی پکانے کی۔ اب جو روٹی بیل کر توے پر ڈالی تو آدھی توے پر اور آدھی زمین پر۔ حبیب کہنے لگے ہٹ تیری کی، اب تو مجھے روٹی پکانا بھی سکھانی پڑے گی۔ ہم خوب ہنسے۔ پھر حبیب نے روٹی پکائی، میں نے بھابھی کے کچن سے سالن لیا، دونوں نے مل کر کھایا۔ حبیب بعد میں جب بھی موقع ملتا کہنے سے نہ چوکتے، روٹی پکانی تو تجھے میں نے سکھائی ہے۔ میں ایک پتی دھرتا استری کی طرح فوراً ان کی استادی تسلیم کر لیتی۔ 4-5 دن بعد حبیب نے اپنے گھر والوں کو خط بھجوا دیا کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ بعد میں وہ تقریباً ہر ہفتے جاتے، میں نہیں جاتی۔ میں نے شادی کے بعد سروس بھی چھوڑ دی تھی۔